Hello, children. Welcome back to science class. Today we will discuss about class 8 science chapter 3, that is synthetic fiber and plastic. As you know, we have already discussed about synthetic fiber in the previous video. So in this particular video, we will only discuss about plastics. So let's see what are the topics we are going to cover in this particular video. Of course, we will discuss about plastics, then types of plastics, then we'll learn more about characteristics properties of plastic. We will also discuss about disadvantages of plastic, and at last but not the least, we will find the ways to get rid of plastics. So let's see what is plastics. So children, the word plastics means easy to mold. Now mold means in Hindi ढालना. Easy to mold means आसानी से किसी दूसरे शेप में ढाल देना, चेंज कर देना. So plastics are such materials which can be given other shape very easily. So let's see. Plastics are organic polymers. So like synthetic fiber, plastics are also made up of polymers. So children, हमें पता है जैसे नाइलॉन्स, पॉलिस्टर्स, they are made up of polymers. In the same way, प्लास्टिक जो है वो भी पॉलीमर्स से बना हुआ है. But the plastic can be molded into desired shape when soft. तो प्लास्टिक जो होता है ना, थोड़ा सा हीट करो तो वो क्या बन जाता है, सॉफ्ट हो जाता है. और तभी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली उसको डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज मोल्ड कर सकते हैं. ओके, एंड देन हार्डन टू प्रोड्यूस अ ड्यूरेबल आर्टिकल. और जैसे ही प्लास्टिक जो होता है कूल डाउन होता है, ठंडा हो जाता है, इट बिकम हार्डन, वो सख्त हो जाता है, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ ड्यूरेबल आर्टिकल. ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ, ऐसा चीज में कन्वर्ट हो जाता है जो ज़्यादा दिन चलता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट like synthetic fibers, plastics are also made up of long polymer chain. Now question is that where from we obtain plastics? So children, plastics are obtained from petroleum product called petrochemicals. So प्लास्टिक जो है ये हमें नेचुरल प्लांट एंड एनिमल सोर्स से नहीं मिलता है. ये हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसको हम लोग पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, वहाँ से ऑब्टेन करना पड़ता है हमें. ओके, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक्स. सो द फर्स्ट वन इज पॉलीइथाइलिन. सो पॉलीइथाइलिन मीन्स पॉलीथीन. Polyethylene means polythene. See here. Now this poly means many. Ethylene is a group of compound. Okay. तो ये पोली और इथाइलिन मिलके क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है. सो इट इज one of the example of plastic, and this polythene is very useful to us. It is used to make polythene bags. हम लोग जो शॉप में, सब्जी मार्केट में जो छोटे छोटे पतले जो पॉलीथीन बैग्स ले जाते हैं ना, दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीथीन. ओके, द नेक्स्ट वन इज पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. ओके, एंड इन शॉर्ट उसको हम लोग पीवीसी बोलते हैं. दिस इज वेरी लाइट स्ट्रॉन्ग मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल है ना, एंड दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग this pipes है ना,
पाइप्स फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क्स, घर में जो बिजली का जितने भी काम होता है ना, दैट उसके लिए जो पाइप्स आते हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ पीवीसी। जो प्लम्बर पानी के लिए जो पाइप्स होते हैं दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ पीवीसी। टॉयज, कॉम्ब, कंगी, दैट ऑल मेड फ्रॉम पीवीसी। सो देर आर मल्टीपर्पज़ यूजेज ऑफ दिस पीवीसी। बहुत सारा यूजेज है पीवीसी का। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज बेकेलाइट। So see children, bakelite is such plastic. It is a special type of plastic which is used to make switches. Why? Because bakelite is poor conductor of electricity. So इसको नोट डाउन कर लेना है कि this bakelite is poor conductor of heat and electricity, and that's why it is used to make electrical switches. The next one is melamine. Now melamine is such plastic. It is also a special type of plastic which resist heat. So melamine जो होता है ना, it is used to make floor tiles. जो हमारे घर में जो floor tiles होते हैं ना, that is made from melamine. And most important use of melamine is it is used to make clothes of firefighter. जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, जो अग्निशामक दल होते हैं, वो जो एक स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं ना, यूनिफॉर्म पहनते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ मेलामाइन। उससे क्या होता है कि वो आग से प्रोटेक्ट करता है, जल्दी उसमें आग नहीं लगती है। उस यूनिफॉर्म को पहनेंगे तो हमारे शरीर को वो आग से बचा के रखेगा, क्योंकि मेलामाइन इज फायर रेजिस्ट होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है ना, इट इज़ ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक विच इज़ यूज्ड इन नॉन स्टिक कुकवेयर। जो हमारा नॉन स्टिक बर्तन होता है ना, सो दैट इज़ मेड अप ऑफ टेफ्लॉन। ये टेफ्लॉन में एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, एक प्रॉपर्टी होता है कि वे ऑयल्स और वाटर में को स्टिक करने नहीं देता, मतलब चिपकने नहीं देता है ना। इसीलिए वो नॉन स्टिक कुकिंग जो होता है, बर्तन जो होता है, उसमें टेफ्लॉन का एक लेयर लगा दिया जाता है ताकि वो ऑयल्स और वाटर उसमें चिपके नहीं, तो हमारा खाना जो होगा वो स्टिक नहीं होगा, वो उसमें क्या बोलते हैं, चिपकेगा नहीं। अंडरस्टैंड? सो दिस वन। नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग। द नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ plastics. So see, the first type of plastic is thermoplastic. Okay, so let's learn about what is thermoplastic. So such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are called thermoplastic. तो ऐसा प्लास्टिक जो अपना शेप खो देता है या अपना शेप चेंज कर लेता है ऑन हीटिंग, चाहे थोड़ा सा ही हीट पाने से, हीट मिलने से, ओके, एंड वो इजीली बेंट हो जाए, सच प्लास्टिक्स आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। ओके, सो पीवीसी, पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है ये थर्मोप्लास्टिक का। सी द फिगर गिवन इन द डाउन, जो वाइट बॉक्स बनाया हुआ है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इट रिप्रेजेंट मोनोमर यूनिट। सिंथेटिक फाइबर में हमने बताया था कि जो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना पॉलीमर का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमर्स बोलते हैं हम लोग। तो दिस मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, 1 to 1, है ना, एंड टू एंड स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट चेन में दे आर अरेंज्ड, एंड सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट। तो लीनियर अरेंजमेंट के कारण क्या होता है कि ये बार बार, जैसे व्हेन यू हीट इट इजीली, मोनोमर्स क्या होता है, अलग हो जाते हैं, और जब कूल डाउन होता है तो फिर से वो रीअरेंज हो जाता है। तो ईजिली उसको हीट करने से रीअरेंजमेंट हो जाता है मोनोमर्स का, और ईजिली वो नया शेप ले लेता है। And such type of arrangement of monomer unit in a polymer is called
लीनियर अरेंजमेंट, इसी को लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। थर्मोप्लास्टिक का जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज पॉलीथीन, पीवीसी। एंड पॉलीथीन, as I told you, it is used to make toys, comb, containers and plastic bags. The next type of plastic is thermoplastic. See the right hand side, and let's see what is that. The next thermosetting plastics are such plastics which when molded ones cannot be softened on heating. तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो एक बार मोल्ड हो जाए, मतलब एक बार वो अपना शेप ले ले, तो फिर से उसको दोबारा हीट भी करोगे तो वो दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सच प्लास्टिक इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वाई वो जो शेप है ना, हीट करने पे चेंज नहीं करता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। देखो उसका जो स्ट्रक्चर है इन द फिगर डाउन, सी द मोनोमर यूनिट्स, जो ये मोनोमर यूनिट्स है ना, वो आरा तिरछा, लीनियर अरेंजमेंट तो है ही, साथ साथ क्या है, क्रॉस लिंक्ड भी है। आरा तिरछा, एक जो मोनोमर यूनिट्स है वो अलग अलग 2-3 के साथ अरेंज्ड है, 2-3 मोनोमर यूनिट्स के साथ लिंक्ड है, एंड सच लिंक इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। और यही क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट के कारण क्या हो जाता है, ये हीट करने पे ये अपना लिंकेज जो है उसको चेंज नहीं कर पाता है। ओके, एंड दैट्स वाई ये जो प्लास्टिक होता है एक बार अगर सेट हो जाए तो दोबारा फिर हीट करने पे अपना शेप चेंज नहीं करता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो एज आई टोल्ड यू, द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन। सो बेकेलाइट के बारे में मैंने बोला ही था पहले कि इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स, जो फ्राइंग पैन होते हैं ना, उसका जो हैंडल्स होते हैं वो बेकेलाइट से बनता है, क्योंकि इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। मेलामाइन, आई टोल्ड यू, इट इज़ यूज टू मेक फ्लोर टाइल्स, क्लोथ ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ द फायरमैन। एंड टेफ्लॉन, जो टेफ्लॉन होता है इट इज़ यूज्ड एज अ लेयर ऑन द नॉन स्टिक कुकवेयर। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसके ऊपर एक लेयर बना रहता है ताकि ऑयल्स और वाटर उसमें चिपके नहीं। ओके, एंड दिस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अदर एग्जाम्पल लाइक चेयर्स, जो हमारे क्लासरूम घर में जो प्लास्टिक के चेयर्स होते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो फ्रेंड्स, ये जो प्लास्टिक है ना, एक बार अगर वो टूट जाए तो दोबारा उसको फिर हीट करके सॉफ्ट करके, है ना, हीट करने से वो सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट करके उसको नया शेप हम नहीं दे सकते हैं। ओके, बिकॉज इट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। नेक्स्ट, सी व्हाट टॉपिक वी आर गोइंग टू डील। Yes, the next topic is characteristics properties of a plastic. So what are the characteristics properties of plastic? The first one is it is non-reactive. So children, non-reactive, it means it do not react with other substance like air, water or certain chemicals. जो प्लास्टिक होते हैं ना, वो जल्दी एयर के साथ या वाटर के साथ या कुछ केमिकल्स के साथ रिएक्टिव नहीं होता है। दैट्स वाई इट इज सेड प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। तो देखो, जो आयरन्स होते हैं ना, वो इट कैन कोरोड ईजिली, मतलब उसमें कोरोशन बहुत ईजिली हो जाता है। कोरोशन मीन्स रस्टिंग, वन टाइप ऑफ रस्टिंग। तो आयरन को जैसे हम लोग एयर में और मॉइस्चर में एक्सपोज कर देते हैं, उसको बाहर में खुले में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है। लेकिन
प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है, एंड दैट्स वाई प्लास्टिक इज यूज टू मेक कंटेनर फॉर स्टोरिंग वेरियस मटेरियल एज वेल एज केमिकल, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगती, वो बहुत सारे केमिकल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, वो नॉन रिएक्टिव है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो बहुत सारा स्टोरिंग कंटेनर्स होता है ना, स्टोरेज कंटेनर्स होता है, दैट इज़ मेड फ्रॉम प्लास्टिक, है ना। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। तो प्लास्टिक जो होता है बहुत हल्का होता है, हल्का होने के साथ साथ वो बहुत स्ट्रांग भी होता है, मजबूत भी होता है, एंड ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होता है, बहुत दिन चलता है ये ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी द प्लास्टिक इज यूज टू मेक बकेट्स। जो बकेट्स होते हैं ना, पानी भरने का, पानी स्टोर करने का जो बाल्टी होता है, दैट इज बकेट्स, एंड इट इज़ मेड फ्रॉम प्लास्टिक नाउअडेज। मग्स are also made of plastics. Why? Because plastics are light, strong and durable. Now let's move to the third property. Plastics are poor conductor of heat and electricity. So as I told you, जो बेकेलाइट होता है, it is also a special type of plastic and it is used to make switches. और जो एक प्लास्टिक जो होता है ना, एक वायर के ऊपर एक कवरिंग लेयर बनाया जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। सो वायर का जो कवरिंग होता है ना, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। वाई? वायर का कवर प्लास्टिक से क्यों बनाया गया है? बिकॉज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड फ्राइंग पैन्स का हैंडल्स, it is also made up of plastic because it is poor conductor of heat. Now let's see to the next slide. Now we are going to deal about disadvantage of plastics. So in the previous slide we have seen that plastics are very useful to us. It is strong, light, durable and also it is cheap, बहुत सस्ता है। Okay, but in spite of all these advantages, there are certain disadvantages. Okay, so let's learn what are the disadvantages of plastic. First disadvantage is it is non biodegradable substance. प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो पहले ये प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले वी विल जस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स पहले जानते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है। सो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, with the help of microorganism it decompose itself in nature। मतलब ऐसा substance like dead plant, animals, kitchen wastes, peel of vegetables, है ना, ये सब क्या होता है कि अगर वो बाहर में छोड़ दो तो ईजिली क्या होता है इन नेचर, है ना, अपने आप वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाते हैं। ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड इन द इन्वायरमेंट। सो सच सब्सटेंस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं लाइक प्लास्टिक, ओके, दैट कैनॉट डिकम्पोज नेचुरली इन नेचर। जो प्लास्टिक्स जो होते हैं ना वो नेचर में नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते, मतलब वो सड़ते गलते नहीं है अपने आप। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको नहीं कर पाते हैं, उसको सड़ा गला नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स वाई इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब देखते हैं, देखो प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज। प्लास्टिक को अगर ऐसे ही नेचुरली छोड़ दिया जाए कि डिकम्पोज हो जाए तो उसको सेवरल ईयर्स लग जाएंगे, सैकड़ों ईयर्स, अराउंड 300-400 ईयर्स लग जाते हैं उसको डिकम्पोज होने के लिए नेचुरली। सो सी द नेक्स्ट पॉइंट, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक कॉजेज एयर पोल्यूशन। प्लास्टिक
नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस तो है ही, साथ ही साथ इफ़ यू बर्न द प्लास्टिक it will release harmful gases and that add pollutant to the air, thus lead to environmental pollution और air pollution, है ना। तो प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो हार्मफुल गैसेस वो रिलीज करता है, जिससे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट, उसको प्लास्टिक को हम पानी में भी नहीं फेंक सकते हैं, बिकॉज इट ब्लॉक्स द अदर वाटर बॉडीज। जैसे प्लास्टिक को अगर हम ड्रेन्स में फेंक देते हैं, नाली में फेंक देते हैं, तो वो नाली को ब्लॉक कर देगा, अंडरस्टैंड। सो उसको हम लोग पानी में भी नहीं फेंक सकते हैं, उसको सॉइल में भी हम लोग नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरली डिकम्पोज होता नहीं है। ओके, इट विल रैदर इट विल इंक्रीज द सॉइल पॉल्यूशन। उसको बर्न भी नहीं कर सकते हैं, इट विल इंक्रीज द एयर पॉल्यूशन। ओके, so that's because of all these disadvantages, nowadays many government have reduces the usage of प्लास्टिक। बहुत सारे स्टेट्स में जाओगे, बहुत सारे कंट्रीज़ में जाओगे जहाँ प्लास्टिक को टू सम लिमिट उसको बैन कर दिया गया, बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिसएडवांटेजेस। नाउ नेक्स्ट सी इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट वी हैव। ways to get rid of plastic। तो चलते हैं, देखते हैं कि प्लास्टिक से कैसे छुटकारा पाया जा सके, प्लास्टिक को से कैसे निजात पा सके, प्लास्टिक का सॉल्यूशन क्या है। सो अर्लियर इन द previous class we have learned that plastic can be get rid by 3R प्रिंसिपल, है ना। प्लास्टिक से हम 3R प्रिंसिपल के द्वारा कुछ हद तक, नॉट फुल्ली बट कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट प्लास्टिक से हम छुटकारा मिल सकता है, प्लास्टिक से हम निजात पा सकते हैं। दैट इज 3R मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। बट nowadays this 3R is not sufficient. So in place of this 3R, one another concept has developed, and that is 4R, and then nowadays that is 5R. Okay, so the first R stands for refuse, second reduce, third reuse, fourth repurpose or reform, and the last one is recycle. So children, refuse means से नो टू प्लास्टिक। कोई तुम्हें प्लास्टिक दे रहा है, शॉपकीपर्स तुमको प्लास्टिक दे रहा है, तो नो, से नो टू प्लास्टिक। ओके, दैट इज रिफ्यूज। रिड्यूस, कम यूज करना है। रीयूज, बार बार यूज करना है। जैसे वाटर बोतल है तो उसको बार बार यूज करना है। कोको कोला का बोटल्स है, सॉफ्ट ड्रिंक का बोटल्स है, उसको हम लोग एज अ वाटर बोतल उसको यूज कर सकते हैं, तो दैट इज रीयूज। द नेक्स्ट वन इज रिपर्पज और रिफॉर्म मीन्स जो प्लास्टिक्स है ना, प्लास्टिक्स बॉटल्स को हम लोग अगर कट कर ले एंड दैट कट पार्ट को हम लोग वी कैन यूज एज अ दैट गमला होता है ना, गमला की तरह उसको यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर ग्रोइंग स्मॉल प्लांट्स। सो दैट इज रिफॉर्म। ओके, एंड द लास्ट वन इज रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स जो प्लास्टिक्स है उसको हम लोग फैक्ट्रीज में भेज सकते हैं एंड देयर द प्लास्टिक्स कैन बी मेल्ट, ओके, एंड गिवन अनदर शेप, उसको कुछ और अदर यूजफुल आर्टिकल्स बना सकते हैं। ओके, सो दैट इज 5R principle. So last, thank you. I hope you have understood the plastics. Bye.